Hello all to Dr. Amit's Academy GPSC. In today's video, we'll be analyzing the PYQ, previous year questions, and the syllabus of the subject polity for GPSC. From 2017 to 2024 जितने भी questions पूछे गए हैं, syllabus में क्या changes है, syllabus में क्या है, उन सारी चीजों पे discussion होगा. In past 3 years, we have around 108 FCS officers selections. Yes, and this is your team who is going to mentor you for the upcoming GPSC mains. And just a minute. So this is basically me. Yes, I have previous four GPSC interviews, and unfortunately, I couldn't be in the list because of the Gujarati language paper, which earlier used to be the part of the merit. But overall, in all the GS and the SA, my score has been pretty good. Had not been the Gujarati problem, I would have been in the selection list as well. But nevertheless, I'm here for your polity paper. This is our mains 500 series course, whereby we'll be having live classes, regular tests, lecture PDFs. Even for this class, we will be sharing the PDF with you in the Telegram group. You will be having digital study material, previous year's question analysis. In fact, we'll also be discussing the model answers of all the previous year questions for the enrolled students. Quick revision material, current affairs, revision classes, live classes, everything shall be there. You can click here. Yes, to join the or to enroll in the batch. So let's start with the syllabus and the previous year questions for the polity today. There have been certain changes. Okay, this is not the thing. There will be 5 marker question and 10 marker question, and it will be a 250 marks exam. Okay. Go through the syllabus. In that syllabus, I am unable to recall exactly कितने 5 marker question है, कितने 10 marker question है. So एक बार syllabus में देख लो. I think there are 15 5 markers, something like that. Just go through it. So Indian polity and constitution. This is a part of your paper syllabus for GS paper 2. I'll just yes, this is better. So your first topic is Indian constitution and its salient features. जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो आपको व्हेन हम लोग अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे सो यू विल कम टू नो दैट व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू स्टडी इन द सेम बट लेट मी टेल यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्ट्री पता होना चाहिए ठीक है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फ्रेम हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या क्या थे कौन कौन लोग थे कौन कौन सी कमेटी में कौन कौन से मेंबर बेसिकली पूरा हिस्ट्री पता होना चाहिए ठीक है पूछ रही है जीपीएससी दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अपार्ट फ्रॉम दैट सोर्सेज यस इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं कि जीपी सॉरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज क्या क्या हैं हमारा दो हमारा एक ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है बट बहुत सारी चीजें हमने बाहर से अडॉप्ट की है सो सोर्सेज हिस्ट्री यस कॉन्स्टिट्यूशन जब एडॉप्ट हुआ है उसके पहले हम कौन कौन सी चीजें एनेक्ट कर चुके थे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से आर्टिकल बिफोर एग्जीक्यूशन लाइक 26 जनवरी के पहले कौन कौन सी चीजें एनेक्ट हो चुकी थी भारत में और कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्ट होने के बाद कौन कौन सी चीजें आई एक चीज ये भी जरा देख लीजिएगा अनटच सेक्शन है एंड इट्स सेलियंट फीचर्स ठीक है बहुत से अनगिनत सेलियंट फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है फेडरल है सिंगल सिटीजनशिप है राइट डीपीएसपी है फंडामेंटल राइट्स है फंडामेंटल ड्यूटीज हैं देन वी हैव provision for constitutional amendment. There is a long list of constitutional, salient features of the constitution. Okay, we do not have a rigid form of constitution. We have adopted parliamentary system, right? So there are various salient features of our constitution. Just go through them in detail. और जब आप ये पढ़ते हो
तो उसके साथ साथ जितने भी बाकी फीचर्स है, फेडरल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन फेडरल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, व्हाट आर द challenges our constitutions are facing, है ना, सारी चीजें इन डिटेल आपको पढ़नी है when you are studying constitution and its salient features, important articles पता होना ही चाहिए, important amendments be it 42, 44, right, 71st, 72nd, 100, 99, 106, इनफैक्ट जो रीसेंट अमेंडमेंट्स है वो तो पता ही पता होना चाहिए, ठीक है, जीएसटी कौन से अमेंडमेंट के थ्रू इम्प्लीमेंट हुआ है, या 33% रिजर्वेशन जो लास्ट टू लास्ट प्रोविजन में आया है वो कौन से अमेंडमेंट्स के थ्रू हुआ है, एवरीथिंग यू आर सपोज टू नीड टू नो इन दिस टॉपिक। फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ इंडियन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, इसमें सब कुछ आ गया है, ठीक है, एंटायर पार्लियामेंट, एंटायर स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, सो लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, इट includes your president, your prime minister, your council of minister, cabinet ministries, governor, emergency provision, सब कुछ, ओके, बिकॉज एंटायर पार्लियामेंट, आपका जो पार्लियामेंट है वो इसी के इर्द गिर्द तो घूमता है, किसके क्या फंक्शन है, किसकी क्या ड्यूटीज है, ठीक है, एंड देयर आर सर्टेन इम्पोर्टेंट posts that about which you really need to go in depth and understand their functions and their role. These are president, governor, vice president, role of Lok Sabha speaker. Same goes for the role of speaker for the state legislative assembly. Yes, then Lok Sabha, Rajya Sabha, legislative assembly, legislative council. ठीक है, ये सारी चीजें पढ़नी है and in detail, along with important Supreme Court judgments on working of governor, president, because ये जो एरिया है ना गवर्नर वाला, हमेशा हॉट टॉपिक रहता है, ठीक है, something or the other will go in some state and the role of governor will come in picture, role of now even the Lok Sabha speaker and the speaker of legislative assembly are becoming crucial topic of discussion, okay, for especially for the Supreme Court. So go through them very carefully, and if anything is coming in the current affairs with respect to this crucial post, just go through the static part of it. Question will never come directly from the current affairs, it will always be indirectly. We'll discuss how the things have come up in the recent past from current affairs to the questions. Okay. Issues and challenges pertaining to the federal structure, role of governor in states. Okay. This person is very important nowadays. Okay. This post has become crucially important in so many aspects, from uh, having the powers in state emergency to making or forming a government, dissolving a particularly constituent, sorry, not constituent assembly, the council of ministers. Okay, so this place has become very important. So go through the role of governor in deep, as I said above also. Okay. Distribution of powers between union list, state list, concurrent list, issues क्या है, challenges क्या है, सारी चीजें देखो। बहुत बड़ी है यूनियन लिस्ट, शायद आपके लिए इस पूरी लिस्ट याद करना पॉसिबल ना भी हो पाए, but at least you should know important things which comes as in sorry, important क्या है यूनियन लिस्ट में, एटलीस्ट ये तो पता होना ही चाहिए, ठीक है, give me a moment. Yes, यूनियन लिस्ट में सेंटर को कौन कौन से पावर्स हैं, कौन कौन से स्पेस सिर्फ सेंटर लॉ बना सकती है, सिर्फ स्टेट लॉ बना सकती है, और जहाँ पे दोनों बना सकते हैं अमेंडमेंट के थ्रू। 5 पावर्स, सॉरी 5 ऐसी जगह हैं, 5 ऐसे इम्पोर्टेंट जुरिस्डिक्शन है जहाँ पे जो कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफर किए हैं फ्रॉम यूनियन लिस्ट, ठीक है, ओवर ओवरलैपिंग पावर्स किसके पास है,
कि अगर एक सेक्शन है जहाँ पे सेंटर ने भी लॉ बनाया है और यूनियन ने भी लॉ बनाया है, तो कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा? ठीक है, ट्राई टू रिकॉल द आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इनफैक्ट इस पे क्वेश्चन भी आया है जीपीएससी और यूपीएससी, समवेयर द क्वेश्चन हैज कम फ्रॉम दिस एरा। तो ये सारी चीजें देख लो, इश्यूज क्या है, चैलेंजेस क्या है। ठीक है, अगर सिर्फ सेंटर उस पर लॉ बना पा रही है तो क्या क्या चैलेंजेस है? फॉर एग्जाम्पल, financial powers on many things has been in the union list, right? So go through the same. Rural and urban local governance, 73rd 74th constitutional amendment, very very important. जीपीएससी का फेवरेट है ये, लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली। आप देखोगे पिछले ये जो 2017 से 2024 का जो एरा है, जीपीएससी हैज आस्क्ड क्वेश्चन ऑलमोस्ट 5 to 6 times इन दिस एरा। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड लाइन ऑफ क्वेश्चन 73rd एंड 74th, पूरा डिटेल में पढ़ना है, किसके क्या पावर्स हैं, किसके क्या फंक्शंस हैं, व्हाट इज ग्राम सभा, हाउ द इलेक्शंस आर हेल्ड। ठीक है, हाउ द सरपंच और द चेयरपर्सन इज अपॉइंटेड, important amendments. Okay, when you are reading all these things, don't forget to read administrative reform commissions के important एआरसी के रिकमेंडेशन, इम्पोर्टेंट कमीशंस के रिकमेंडेशन, लाइक पुंछी कमीशन हो गया आपका, राइट? देयर आर वेरियस कमीशंस व्हिच हैव गिवन वेरियस नोट्स एंड वेरियस recommendations with respect to them, with respect to the role of governor, with respect to anti-defection law, many things have come. Okay, so वो सारी चीजें आपको देखनी है। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एंड द रोल, अगेन डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ से। ठीक है, चाहे आपका एनएचआरसी हो गया, दिस इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बट अदर बॉडी। ठीक है, कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस, कमीशन ऑन एससी एसटी, ठीक है, कमीशन ऑन वुमेन, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अगेन, बट जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं उनके रोल आपको देखना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया आपका, ठीक है, कैग हो गया है, then there's a attorney general, though he is a person but again a constitutional authority. ओके, सो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं उनके आपको रोल देखना है, कहाँ चैलेंजेस है, इनके पावर्स क्या है। ठीक है, इफ यू आर राइटिंग चैलेंजेस यू नीड टू राइट द सॉल्यूशंस। वन मोर थिंग, अभी तक जो थोड़ा अनटच सेक्शन है जीपीएससी का, दिस इज दिस प्लीज, लोकपाल स्टिल अनटच, लोकायुक्ता अनटच। तो ये सेक्शंस को थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए। Parliament and state legislatures, structure, functioning, conduct of business, powers and privilege, issues arising out of it, privilege के साथ साथ immunities, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ हो गया आपका, फिर देर आर सो मैनी थिंग्स विच कम्स अंडर इट। जो आपका पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो चैप्टर्स हैं लक्ष्मीकांत के, रट डालना है इसके लिए। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना है। ऑर्डिनेंस कब पास हो सकता है, ठीक है, मनी बिल कब पास हो सकता है, कौन कौन से उसमें मनी बिल पास हो सकता है, किसके पास क्या क्या पावर्स हैं, एवरीथिंग। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ओके, अमेंडमेंट पढ़ रहे हो, ठीक है, तो कितने टाइप के अमेंडमेंट है, सिंपल, स्पेशल, ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कितनी मेजोरिटी किस अमेंडमेंट में चाहिए, वो सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। व्हेन यू टॉक अबाउट कंडक्ट ऑफ बिजनेस, है ना, एडजर्नमेंट मोशन हो गया, एडजर्नमेंट सिनेडाई हो गया, है ना, देयर आर सो मेनी मोशंस व्हिच कम्स अंडर दिस। तो जितना भी स्टैटिक है उसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, immunities, what are the immunities given to the members of parliament and the state legislative assemblies? Go through it. Very 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 important topic, judiciary in India. How does the Supreme Court functions and how does the High Court functions? इनके रोल क्या है, इनके important judgments क्या है? Judgments like केशवानंदा भारती हो गया आपका, गोपालन वाला जजमेंट हो गया। ठीक है, what is secularism, बेसिक स्ट्रक्चर। देखो, जितना आपको बेसिक्स पता होगा ना इन पूरे पॉलिटी का, उतना आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जुडिशियल इंडिया स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग, इम्पोर्टेंट प्रोविजंस रिलेटिंग टू इमरजेंसी,
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जुडिशियल रिव्यू, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सारी चीजें, सब कुछ बेसिक है और बेसिक से ही क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं, बट यू हैव टू रीड देम। यहाँ पे कुछ टॉपिक्स मिसिंग है, लेट मी टेल यू। जुडिशियल एक्टिविज्म इस फेवरेट टॉपिक है अगेन जीपीएससी का। देन जुडिशियल ओवररीच, एनजेसी, कलेजियम। डेफिनेटली जब आप जुडिशरी पढ़ोगे तो ये सारी चीजें पढ़ना ही है, बट जस्ट बिकॉज जुडिशियल एक्टिविज्म या ओवररीच जैसे वर्ड्स आपके सिलेबस में डाले नहीं गए, दैट डजंट मीन कि वो आ नहीं सकते। इमरजेंसी, वाई इंपॉर्टेंट प्रोविजंस रिलेटिंग टू इमरजेंसी, सब पता होना चाहिए। इमरजेंसी कौन से ग्राउंड पे हो सकती है, नेशनल लेवल इमरजेंसी कब हो सकती है, स्टेट लेवल पे कब हो सकती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी कब हो सकती है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, किसके पास क्या पावर है, आर्टिकल 19 से रिलेटेड क्या पावर्स है नेशनल इमरजेंसी में, आर्टिकल 20 एंड 21, आर्टिकल 22, ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। आर्टिकल आपका 358 एंड 359 का डिफरेंस जब आप इमरजेंसी पढ़ रहे हो, राइट। आर्टिकल 355 क्या है, देन ऑब्वियसली 356 से 360 तो सबको पढ़ना ही है, 352 भी पढ़ना है ना, इम्पोर्टेंट तो वही है। सो जस्ट गो थ्रू द इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, ओके, एंड सारी चीजें अच्छे से पढ़ो। एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 310, दिस इज रिलेटेड टू सिविल सर्विसेज, इसको अच्छे से पढ़ लो। ऊपर हमने बात की थी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज एंड देयर रोल्स, और ये सारी चीजें जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आपका पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एज वेल एज यूपीएससी, व्हाट आर इट्स पावर्स, फंक्शंस, ये सारी चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए, ओके। Public administration and governance. Again, this is included in paper 2. So let's just go through it. Meaning, nature, scope of public administration. इसके लिए ना पबेड की कोई अच्छी सी बुक ले लो और आपके बेसिक्स क्लियर करो कि पबेड है क्या एग्जैक्टली। एडमिनिस्ट्रेटिव आइडियाज इन द कौटिल्यज अर्थशास्त्र, just read this very nicely because again this is one of the untouched section by GPSC and I'm expecting question out of this, ठीक है। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, इस पे जीपीएससी कभी भी ऐसा नहीं पूछेगी कि क्या अच्छा था, ठीक है। एक अलग टाइप का क्वेश्चन आएगा, पूरा का पूरा इस पे क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस था, या इन दोनों से हमारे लेटेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चीजें आई हैं, राइट, इनका इन्फ्लुएंस करंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कैसा है, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। लेगेसी ऑफ ब्रिटिश रूल, यस, सो एडमिनिस्ट्रेशन में ब्रिटिशर्स का कैसा सीन था, ठीक है। हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट चार्टर या इंपॉर्टेंट एक्ट आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से पूछ ले, सो जस्ट गो थ्रू देम, ठीक है। जो आपकी लक्ष्मीकांत में इसके बारे में लिखा है ना, दिस ब्रिटिश रूल्स विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन, उसको अच्छे से पढ़ लो, दैट्स इट, दैट विल बी मोर देन इनफ। रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, again you will have the basic things coming out of this की अकाउंटेबिलिटी से रिलेट हो गया आपका, ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड हो गया आपका, एग्जीक्यूशन से रिलेटेड हो गया, ठीक है। सिविल सर्विसेज को, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में सिविल सर्विसेज का रोल क्या है। गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स, इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, तो कोई भी पॉलिसी आ सकती है, कोई भी स्कीम आ सकती है, कोई एक्ट आ सकता है रादर, ठीक है। उसको और डेवलपमेंट सेक्टर को, वेरियस सेक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट को आपको लिंक करके चलना है। सो दिस आर, सी, ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन में से कुछ बन के आ सकता है आपका, ओके। रोल ऑफ सिविल सोसाइटी, एनजीओ एंड अदर स्टेक होल्डर, ये थोड़ा है, इसको अच्छे से पढ़ लो। एनजीओस के क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, उसमें क्या क्या हो रहा है, एनजीओ के लिए क्या एक्ट है, एनजीओस में फॉरेन इन्वेस्टमेंट का क्या सीन है, वो थोड़ा देख लो। स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज, इसमें सब आ गया, आपका सीबीआई आ गया आपका,
NHRC आ गया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन आ गया, ठीक है, ऑल एवरीथिंग बीट ट्रिब्यूनल्स और बी इट ट्राई, है ना, सारी चीजें इसमें आ गई है। तो सारे आपकी इनफैक्ट नीति आयोग, ठीक है, सब इसमें आ गए। तो जितनी भी बॉडीज हैं उनको अच्छे से पढ़ना है। Development, social sector management, challenges in health, education, human resources development, role of governance and policy making in strengthening social sectors, poverty and hunger, poverty, inequality and that। देखो पहले ये वाला जो पूरा पोर्शन था वो GS3 में भी आता था, GS1 में भी आता था, थोड़ा बहुत GS2 में। इस बार इन्होंने पूरा का पूरा GS2 में डाल दिया। इनफैक्ट इंडियन सोसाइटी विच वंस यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ GS1 is also now part of GS2। ओके, सो पोवर्टी एंड हंगर, है ना, इंडिया का पोवर्टी रेशियो क्या है ना। सी रिसेंटली ही अभी एक रिपोर्ट आई है कि इंडिया का जो पोवर्टी रेशियो है वो घट गया है ना। सो व्हाट लेड टू द डिक्लाइन इन रेट ऑफ पोवर्टी इन इंडिया, what are the various measures government has taken, important schemes, important policies, and अभी भी अगर particular percentage of poverty है, so what else can be done। MG नरेगा, तो वो जितने भी ये इंपॉर्टेंट स्कीम्स है ना, जो लैंडमार्क चीजें चली आ रही उसको अच्छे से पढ़ना है। इनइक्वालिटी, तो इसका तो हमारा जेंडर गैप रिपोर्ट आता है, इनइक्वालिटी इंडेक्स आता है। उसमें कहाँ पे है इनइक्वालिटी, वो सोशल सेक्टर में है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में है, या फिर आपके एजुकेशन सिस्टम में है, कहाँ पे है इनइक्वालिटी परसिस्ट कहाँ पे कर रही है, उस उनके बारे में लिखना है। इससे रिलेटेड जितनी भी रिपोर्ट्स हैं अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि उन्हीं रिपोर्ट्स का आप रेफरेंस देंगे जब आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Causes, consequences and strategies to tackle poverty and hunger। Okay, now again, आपका आज भी हमारा हंगर इंडेक्स में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। Why? Where are we still lacking? What are the challenges? What are the solutions? Government initiatives। Okay, और आप जब ये सब कुछ पढ़ रहे हैं, डू नॉट फॉरगेट गुजरात। गुजरात गवर्नमेंट पॉवर्टी के लिए, लिटरेसी के लिए, हंगर के लिए क्या कर रही है, यू हैव टू गो थ्रू इट। ओके, और एनजीओस, इम्पोर्टेंट एनजीओस आपके कौन से हैं इंडिया में, ठीक है, चाहे वो चाइल्ड एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाइल्ड लेबर से हो, या फिर वुमेन से रिलेटेड कोई एनजीओस हो, ठीक है, तो सारे इम्पोर्टेंट एनजीओस इंडिया एज वेल एज गुजरात, ध्यान रखना है, ठीक है। Indian society, part of GS2, though I'm not taking it, but still syllabus in brief थोड़ा देख लेते हैं। ये पहली बार आया है, तो ये जरा देख लेते हैं। कोर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी, एनसीईआरटी की बुक है इंडियन सोसाइटी पे, ठीक है। आई गेस 11th एंड 12th की है, उनको देखो अच्छे से, आप इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ये पूरा सेक्शन वहां से आपको अच्छे से आ जाएगा। ये अच्छे से गूगल करो, न्यूक्लियर फैमिलीज क्या है, उनके चैलेंजेस क्या है, सिंगल पेरेंट फैमिली क्या है, उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स है, अच्छी बात क्या है उसमें, और व्हाट आर द चैलेंजेस, जेंडर रोल्स, एल्डरली, सीनियर सिटीजन बेस्ड पॉलिसीज गवर्नमेंट की क्या है, गुजरात गवर्नमेंट सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या कर रहे हैं, उनके सोशल सिक्योरिटी के लिए क्या क्या हो रहा है, इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स इन दी हेल्थ सेक्टर फॉर द सीनियर सिटीजन्स क्या है, जस्ट गो थ्रू द सेम। ओके, यहाँ पे जितनी भी स्कीम्स है ना, ये सारे अच्छे से कर लेंगी, ठीक है। Women society and development, women changing role of women in Indian societies, issues, strategies and solution, role of gender in decision making at different level। एक किताब आती है योजना, है ना, इसका मार्च का 3-4 साल का एडिशन उठाओ, ठीक है। वाई मार्च? बिकॉज इंटरनेशनल वुमेन्स डे, उसमें आपको ये वुमेन रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है उसके आंसर्स मिलेंगे, 100% मिलेंगे, ठीक है। विजन आईएएस का जो सोशल उस पे चैप्टर है उसको उठाओ, वहां से क्वेश्चंस आपको इसके आराम से मिलेंगे, ठीक है। सोशल चैलेंजेस, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन कल्चर, इकोनॉमी, चेंजिंग लाइफस्टाइल, कंज्यूमरिज्म, चेंजिंग वैल्यू सिस्टम इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, सारी चीजें हैं। माय कंसर्न इज दिस नाउ, गुजरात डायस्पोरा,
ये एक बहुत है, तो आपको पता होना चाहिए कि इवन यू आर फ्रॉम गुजरात और नॉट, दैट वेर इन विच ऑल कंट्रीज यू विल फाइंड मेजोरिटी गुजरात डायस्पोरा। इट्स नॉट जस्ट यूएसए, यूके, कनाडा हो गया आपका, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, फिजी, इंडोनेशिया, दुबई, है ना। तो थोड़ा फाइंड आउट करो कि कहाँ कहाँ गुजराती डायस्पोरा ज्यादा है। ठीक है, इनके माइग्रेशन पैटर्न्स कैसे हैं, ग्लोबल ग्लोबल प्रेजेंस ऑफ गुजराती कम्युनिटी, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड कल्चरल कंट्रीब्यूशन ऑफ द गुजराती डायस्पोरा। ठीक है, इस चीज को थोड़ा प्रिपेयर करो। अगेन अनटच सेक्शन है जीपीएससी का, सो पॉसिबल क्वेश्चंस आर मेकिंग। लेट्स गो टू द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, अभी तक क्या क्या पूछा गया है। ओके, ईयर ऑफ 2024, I think it was all about constitution. सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन की बातें हुई इस साल। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियलिज्म इज द रिजल्ट ऑफ द social context of the independence movement. Now, what is constitutional idealism? This is the first thing you need to explain to the examiner. ठीक है कि भाई constitutional idealism है क्या exactly? It's basically an ideology, a social ideology which reflects in the constitution of yours. ठीक है, तो is a result of social context of the independence movement. इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम की जो भी सोशल रेफरेंस थे उससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की आइडियोलॉजी डिसाइड हुई। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, सोशल रिफॉर्म्स हुए थे, है ना। इस सोशल रिफॉर्म्स में बहुत सारी चीजें हुई थी विद रिस्पेक्ट टू वुमेन, चाइल्ड, अनटचेबिलिटी, racial discrimination, and there were so many things which took part in the social reform movements during the independence. नेशनल मूवमेंट्स हुई, उन नेशनल मूवमेंट्स में हमारी डिमांड क्या होती थी, इक्वालिटी। यूज टू डिमांड फॉर फंडामेंटल राइट्स, यूज टू डिमांड फॉर लिबर्टी, यूज टू डिमांड फॉर फ्रीडम, है ना। इन ये सारी आइडियोलॉजी जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्लेक्ट हुई है। ठीक है, उसके बाद हम एक सेक्युलर कॉन्सेप्ट को प्रमोट करते थे। ठीक है, सेक्युलरिज्म से रिलेटेड जितनी भी आपकी उस टाइम की एक्टिविटीज हैं, सोसाइटल एक्टिविटीज हैं, वो सारी चीजें आपके कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियलिज्म में है। ठीक है, एंड ग्लोबल आइडियाज। ठीक है, फिर चाहे वो रशिया की मूवमेंट हो या फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो, इन सब चीजों ने कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियलिज्म पे एक अपनी छाप छोड़ी थी जिसका रिजल्ट आपको दिखता है। ठीक है, very good question, and you need to answer it in a most structured way. Present federal process has been facing many challenges regarding its method of creating or separating any state from its ground level. तो क्या है फेडरल प्रोसेस? बेसिकली फेडरलिज्म। और ये जो चीज हमने कॉन्स्टिट्यूशन में एडॉप्ट की है, तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल स्ट्रक्चर। When you know this federal structure, you will know कि इस फेडरल प्रोसेस का, ठीक है, इसमें क्या क्या चैलेंजेस है जो स्टेट में क्रिएट कर रहे हैं। अब वो चाहे सेंट्रलाइजेशन हो, है ना, क्या है, फाइनेंस कमीशन में कितनी सारी चीजें जो है वो सेंट्रलाइज्ड है, राइट। तो वो आपको एक दिक्कत करती है। ठीक है, फिर इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर, है ना, विद रिस्पेक्ट टू वेरियस रिसोर्सेस, with respect even to the devolution of funds, फाइनेंस कमीशन का जो फंड्स है उस पे। तो बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं वो यहाँ पे डिस्कस करने की, किस तरीके से स्टेट के लिए वो परेशानी हो रही है। ठीक है, एक्सप्लेन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट with respect to the appointment of chairpersons, members to regulatory bodies. Now देखो यहाँ पे तीन चीजें समझ में आ रहा है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किसका होगा, गवर्नमेंट का होगा और वेरियस स्टेक होल्डर्स का होगा, या वेरियस इंपॉर्टेंट पर्सन्स का होगा। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स।
किस चीज की? एवं किसी कमीशन की बात नहीं हो रही है, सीबीआई चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है रेगुलेटरी बॉडीज की। जितनी भी आपकी रेगुलेटरी बॉडी है, कौन सी है इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी बॉडी? सेबी, ट्राई, चीफ सीसीआई, फिर आपका सीवीसी, ये जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, इनके अपॉइंटमेंट में कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। सेबी क्यों भाई? फाइनेंस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ट्राई क्यों? टेलीकॉम सेक्टर, बिग सेक्टर, यू नो हुज रेफरेंस। सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी बॉडीज हैं। तो इनके अपॉइंटमेंट में जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। अब इसको क्रिटिकली एनालाइज नहीं करना है, इसको एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है, तो इस पे क्या होगा? इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व होगी, गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगा, ब्यूरोक्रेट्स आएंगे। ठीक है, तो इस चीज को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। 73rd एंड 74th नाउ से ऊपर ही मैंने आपको बताया था कि ये जो चीज है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हो गया, लोकल बॉडीज हो गई, favorite of GPSC. The 73rd and 74th constitutional amendments have brought in it a significant changes in the concept of people's participation at the grassroots level of democracy. Examine the catalyst to these changes to enhance people's participation. तो इन्होंने क्या बोला है? Have brought in significant changes in the concept of people's participation at grassroots level. Sorry. पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हो गया, अर्बन लोकल बॉडीज होगी, आपकी लोकल बॉडीज होगी। ठीक है, इनकी वजह से क्या हुआ है? पब्लिक का पार्टिसिपेशन बढ़ा है। तो पब्लिक का पार्टिसिपेशन किस तरीके से बढ़ा है, आपको तो पहले एक तो वो एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कि कॉन्सेप्ट ऑफ एट द ग्रास रूट लेवल ऑफ डेमोक्रेसी, ग्रास रूट लेवल पे पीपल्स पार्टिसिपेशन पंचायती राज में किस तरीके से बढ़ा है, वो डेवलप करना है। कैटेलाइज टू दिस चेंजेस टू एनहांस पीपल्स पार्टिसिपेशन। तो गवर्नमेंट और क्या कर सकती है जिससे पीपल्स का जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़े? इस ये क्वेश्चन था, सॉरी, ये जो क्वेश्चन था सीधा सीधा योजना से आया था। उस साल की योजना में पीआरआई पे एक आर्टिकल था। ठीक है, वहीं से क्वेश्चन डायरेक्टली उठ के आया। तो सी नाउ यू सी कि किस तरीके से योजना से और इन सब जगहों से इस तरीके से क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं। In the context of Supreme Court's observation, examine the constitutional role of governor with regard to bills passed by legislative assembly. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आए दिन, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट बिल्स जो पास नहीं हो रहे थे उस पे टिप्पणी की थी। ठीक है, एक पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड, वाज इट तमिलनाडु और देयर वाज सम पर्टिकुलर स्टेट, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल एग्जैक्टली। बट इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट अपने टाइम एंड टाइम ऑब्जर्वेशंस देते रहते हैं, और यहाँ पे इनको थोड़ी क्लास लगाते रहते हैं। सो ऐसा कोई भी चीज न्यूज में आ रही है तो उसको ध्यान से पढ़िए, उसके इम्प्लीकेशन समझिए और आपका स्टैटिक पोर्शन उठाइए। सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन, एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल रोल ऑफ गवर्नर विद रिगार्ड टू बिल्स पास बाय लेजिस्लेटिव। स्टैटिक क्वेश्चन है, कंप्लीटली स्टैटिक क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे आर्टिकल 200 समझाना है। ठीक है, और क्या क्या गवर्नर की पावर्स है विद रिगार्ड्स टू बिल्स पास बाय असेंबली? या तो वो पास कर दे, ठीक है, वीटो पावर का यूज ना करे और जो भी है उसे क्लियरली असेंड कर दे। उसके पास पावर है कि वो प्रेसिडेंट को भेज सकती है। उसके पास पावर है कि वापस वो बिल लेजिस्लेटिव असेंबली को रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकती है। ठीक है, सो व्हाट आर द पावर्स गवर्नर हैव विद रिगार्ड टू बिल्स पास बाय लेजिस्लेटिव असेंबली? अगर वो प्रेसिडेंट को भेज रही है, सो मेंशन कौन कौन सी कंडीशन में गवर्नर जो है प्रेसिडेंट को बिल भेज सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एंड लिस्ट द salient features of Constitution of India and describe at least 5 features identified by you in at least 40 to 50 words for each feature. ठीक है, सिंपल है, लिस्ट देनी है सेलियंट फीचर्स की, आपको जितनी भी याद है, चाहे वो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन हो, लेंथियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हो, फेडरल स्ट्रक्चर हो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, फंडामेंटल राइट्स हो, डीपीएसपी हो, सेक्युलरिज्म हो, यूनिवर्सल एड्रेस सफरेज हो, फिर आपका सिंगल सिटीजनशिप हो,
What else? Okay. There are endless, it is an endless list. Independence of judiciary हो, ठीक है? So there are endless lists with respect to the features of our, sorry, salient features of Indian Constitution. ठीक है? You have to describe at least 5 of them. तो जो important लगे आपको, जिसमें confident हो, 5 describe करो. How judicial intervention helps in strengthening democracy and the rule of law. Very important and very intelligent question. ठीक है? पहले तो आपको पता जुडिशियल इंटरवेंशन होता है. अगर रिसेंट पास्ट में आपको कोई ऐसा दिमाग में कोई चीज आई हो कि हाँ रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियली इंटरवीन किया था इस पर्टिकुलर मैटर में, ठीक है, उसका आप एग्जांपल इंट्रोडक्शन में दे सकते हो, या सिंपली आप बताओ कि जुडिशियल इंटरवेंशन किस तरीके से होता है डेमोक्रेसी में, ठीक है, और इसका रूल ऑफ लॉ पे क्या इम्पैक्ट होता है. You need to give examples. Now see, it increases accountability, ठीक है, protects fundamental rights, check the arbitrariness of the governance and the government, ठीक है. तो वो सारी चीजें ये लोग करते रहते हैं. रिसेंटली जो कोई भी चीजें हुई है उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है. मोरबी ब्रिज गिरा था रिसेंटली, ठीक है, या फिर आपका रफेल हो गया, है ना, आपका जो भी लेटेस्ट एग्जांपल्स आपको आते हैं, मोरबी बीच में जैसे जो मोरबी बीच कोलैप्स हुआ था वहां पे गुजरात का हाई कोर्ट जो है वो इंटरवीन करी थी. तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो ना. पपेट को लेके ना जीपीएससी अब पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज हो गया है. पपेट को लेके वो डेप्थ में क्वेश्चन पूछ रही है. पहले जो थे क्वेश्चंस बड़े सी इजी से आते थे, सिंपल आते थे, बट अब थोड़ा चेंज हो गया है. Identify 5 major contributors who define public administration and summarize this definition that identify the public administration. तो सीधा सीधा आप जब पवेट पढ़ रहे हो तो आपको 5 एडमिनिस्ट्रेटर्स के नाम पता होने चाहिए, ठीक है, कि जिन लोगों ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन किया था और इनकी क्या क्या डेफिनेशन थी उसको समराइज करना है आपको. बेसिक क्वेश्चन था. Should Mughal era and British legacy be blamed for policy administrative policy in the present area? तो आपको पता होना चाहिए कि मुगल के टाइम पे क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, ब्रिटिश लेगेसी में क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, और क्या अभी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें कोई प्रॉब्लम है और उसका और इनका कोई रेफरेंस है. ठीक है. सो यू नीड टू नो दैट एंड देन यू हैव टू डिस्कस. इनके सारे जो आंसर है रोल मॉडल है, मॉडल आंसर्स हमारे पास रेडी है, which we will be discussing in detail in our other lectures. हाँ, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज अ कैटलिस्ट फॉर गुड गवर्नेंस. ठीक है. एंडलेस नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं इसमें. ठीक है. योजना आपकी जो मैगजीन है ना, उसमें बहुत एग्जांपल्स आते हैं. किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में किसी पर्टिकुलर कलेक्टर ने आईसीटी को यूज करके कोई नई टेक्नोलॉजी या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में कोई नया क्रांति लाई हो, कोई नई चीज डेवलप की हो, किसी चीज को ई रिकॉर्ड्स हो या कुछ भी गवर्नेंस में उसका यूज किया हो. तो हाउ, पहले तो आपको ये एक्सप्लेन करना है हाउ. ठीक है. आंसर विद एग्जांपल. कहाँ पे कुछ हुआ है तो आपको बताइए. अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज करती है, ट्रांसपेरेंसी है, एफिशिएंसी है, इफेक्टिवनेस है, ये सारी चीजें हैं. ठीक है. बेसिक चीजें हैं जिसको आपको अच्छे से इस आंसर में एनहांस करके लाना है. Endemic corruption occurs due to weakness in the administrative process. What hinders the efforts to combat endemic corruption? First, so you need to know what is endemic corruption. Endemic corruption को पहले तो explain करो. ठीक है. Occurs due to weakness in the administrative process. कैसे? How is administrative process responsible for the endemic corruption? And what hinders the efforts to combat endemic corruption? तो वो सारी चीजें बतानी है. And then solution. Which one is having the supremacy? 2023 constitutional supremacy और parliamentary sovereignty. ठीक है. जस्टिफाई योर आंसर. दोनों कॉन्सेप्ट को पहले एक्सप्लेन करो. और आपको लगता है कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी ज्यादा है या पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी ज्यादा सुप्रीम है, एक्सप्लेन. फॉर मी इट्स ऑलवेज कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉ ऑफ लाइन. ठीक है. बट अगेन आपका व्यू अलग हो सकता है. But for me, constitution always prevails over any other thing. तो इन दोनों को आप पहले explain कीजिए और फिर आगे बढ़िए. Allow me a moment. Um, okay.
कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, एक्सप्लेन। नाउ इसके लिए तो आपको बहुत अच्छे से पहले ये पता होना चाहिए कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, किन तरीके से हमने सेपरेशन ऑफ पावर किया है। यू नीड टू एक्सप्लेन कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी पहले तो, ठीक है। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में क्या है, भाई कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी से जो गवर्नमेंट को पावर मिले हैं वो रिटर्न है, एंड गवर्नमेंट इज नाउ अकाउंटेबल टू द पीपल थ्रू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये एक आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। कैसे, वो आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है। व्हाट इज पीआईएल? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। What type of appeals do not fall within the framework of PIL? Give examples to justify. सीधा सीधा चीजें हैं। PIL क्या है, एक्सप्लेन करो पहले तो, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उसके दो पांच एग्जाम्पल्स दो। व्हाट, है ना। जब सी, अब इसमें क्या है, व्हाट टाइप ऑफ अपील डू नॉट फॉल विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ पीआईएल। तो कौन सी अपील पीआईएल में फॉल करती है, जब आप ये डिफाइन कर रहे हो तभी चीजें लिख दो कि भाई पीआईएल क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है, रिसेंट पास में पीआईएल से कुछ रिलेटेड कुछ गुजरात या इंडिया में हुआ है क्या, ठीक है। व्हाट ऑल थिंग्स फॉल अंडर पीआईएल। फिर आप ये बताओ which type of appeals do not fall within the framework of PIL। पब्लिक प्राइवेट इंटरेस्ट होगा तो वो पीआईएल में फॉल होगा क्या? लैंड ओनर या टेन्योर का, सॉरी टेनेंट का कोई डिस्प्यूट है तो वो पीआईएल में जाएगा क्या? नहीं, ठीक है। गिव एग्जांपल्स टू जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि जहाँ पे पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, जिससे लार्जर पब्लिक को इम्पैक्ट हो रहा हो, ऐसी चीजें पीआईएल में आती है, ठीक है। तो पीआईएल को अच्छे से डिफाइन करो उसके लिए। Critically examine the impact and consequences of Supreme Court's landmark judgment in the Keshwananda Bharti case. Okay, what was Keshwananda Bharti case? सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में वो बताना है, ठीक है। व्हाट वाज एग्जैक्टली केशवानंद भारती केस, उसका बैकग्राउंड क्या था, ठीक है। वो चीजें बताओ, कितने बेंच की वो जजमेंट थी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 11 की जजमेंट थी कि 13 बेंच की जजमेंट थी, ठीक है। उसका इम्पैक्ट क्या है। इम्पैक्ट से में ये नहीं कहेंगे हम कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमको मिला, वो तो आप जो केशवानंद भारती का जजमेंट देंगे ना, उसमें वो चीजें आ ही जाएंगी। लेकिन ओवरऑल लार्जर स्केल पे उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी दी है उसने, सॉरी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन आपका सुप्रीम है, ये चीजें हमें मिली है, ठीक है। जुडिशरी को और पावर मिला है, व्हाई? बिकॉज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया, कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम कर दिया, तो अब गवर्नमेंट कोई भी बिल लाएगी जो इसके और इसके अगेंस्ट होगा, जुडिशरी उसको कह सकती है अल्ट्रा वायलेट, दैट इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल विच वी से, ठीक है। तो ये सारे इम्पैक्ट्स आपने डिस्कस करने हैं। कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे हैं, ठीक है। तो जुडिशरी एक अलग तरीके से इन्वॉल्व हुआ है, पीपल को ज्यादा राइट्स मिले हैं, पीपल के राइट्स ज्यादा प्रोटेक्ट हुए हैं, ठीक है। ये सारे इसके कॉन्सिक्वेंसेस रहे हैं। अब आपको इसको क्रिटिकली एग्जामिन करना है। तो क्रिटिकली इसको कैसे क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे, तो यहाँ पे एक चीज मैंने कही थी, जुडिशरी, है ना। क्या हुआ है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर आपने डिफाइन किया, है ना, आपने बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर को आप नहीं हटा सकते, आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, यू कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जब कोई गवर्नमेंट कोई बिल ऐसा लाती है जो इसके अगेंस्ट होता है, या नॉट जस्ट बिल, ठीक है, इवन एनी बाय लॉ इज कमिंग और एनी रूल इज कमिंग, एनी रेगुलेशन इज कमिंग विच इम्पैक्ट दिस सेक्शन, लोग पहुंचाते हैं जुडिशरी। अब जुडिशरी क्या करती है, जुडिशरी पहुंच जाती है डायरेक्शंस देने, sometimes even guidelines, है ना। what it leads to, it doesn't lead to activism, it leads to overreach, ठीक है। तो ये जुडिशियल ओवररीच हो जाता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल की सोवरेनिटी और इन सारी चीजों को धीरे धीरे इम्पैक्ट करने लगता है। और सिर्फ यही नहीं, पार्लियामेंट की फंक्शनिंग को भी इम्पैक्ट करता है, ठीक है। पार्लियामेंट की डेमोक्रेसी को भी इम्पैक्ट करता है। सो दैट्स व्हाई, do the privilege available to the parliament and state legislature undermine the concept of sovereignty? So now what you need to know is
हमको प्रिविलेज और उसका जो पर्पस है वो सब पता है, ठीक है, कि पार्लियामेंट का क्या प्रिविलेज है, स्टेट लेजिस्लेचर्स के क्या प्रिविलेज है, बट उसको सोवरेनिटी से कैसे रिलेट करेंगे वो पता करना है, ठीक है, कि क्या ये जो सारी चीजें हैं ये आपके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। डू द प्रिविलेज अवेलेबल टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर अंडरमाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी। व्हाट इज सोवरेनिटी, ठीक है, पहले तो ये समझो कि सोवरेनिटी है क्या। इस कॉन्सेप्ट को आपको एक्सप्लेन करना है आंसर में, तो पहले समझाना है कि सोवरेनिटी क्या है, ठीक है। उसके बाद बहुत ही ब्रीफ में बताओ कि क्या क्या प्रिविलेजेस है पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास, ठीक है, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द हाउस है, इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल प्रोसीडिंग्स है, या कंटेम्प्ट के लिए पावर टू पनिश है, ठीक है, इफ समबडी ब्रीचेस द प्रिविलेजेस, ठीक है, तो ये सारे पावर्स है। अब ये जो है आपकी सोवरेनिटी को क्या ये कंडेम कर रहे हैं, क्रिटिकली एग्जामिन। तो देखो ज्यादातर तो कोई सोवरेनिटी को कंडेम नहीं कर रहा है, ठीक है, दो चार पॉइंट्स लिख दो, लिखना है तो क्रिटिकली, क्योंकि क्रिटिकली एग्जामिन है तो वो सारी चीजें आप लिख सकते हो, बाकी कुछ नहीं है टू कंडेम दी sovereignty. Examine the main objectives of creating the office of Lokpal and Lokayukta. Aim, objective जब हम पढ़ते हैं वही छापना है यहाँ पर। Do you think that the purpose for which they have is achieved? Discuss with examples. Latest लोकपाल या लोकायुक्ता ने कोई छापा मारा है, ठीक है, लेटेस्ट कुछ चीजें हुई है, हैज द बिल अचीव, तो अब क्या है, डू यू थिंक, तो प्रोग्रेस तो हो रहा है ना। लोकपाल या लोकायुक्ता से छापे तो पड़ रहे हैं कि भाई हाँ इनकी चीजें जो है करप्शन से रिलेटेड लोकपाल रिसीव कर रहे हैं, लोकायुक्ता पर अपने अपने स्टेट्स में रिसीव कर रहे हैं, लेकिन चैलेंजेस तो हैं, है ना। वो चैलेंजेस तो हमको करना पड़ेगा कि थोड़ा जो है फाइलिंग केसेस में डिले हो रहा है। लोकपाल के पास जो है ज्यादा पावर्स नहीं है, सी इफ यू नो इट डजंट हैव मच पावर, सेम गोज विद लोकायुक्ता, ठीक है। क्वेश्चन कम्स विद रिस्पेक्ट टू जुडिस्डिक्शन, अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आउट ऑफ जुडिस्डिक्शन है फ्रॉम द लोकपाल एंड लोकायुक्ता, और इसका जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा आ नहीं रहा है, करप्शन में कोई कमी खास दिख नहीं रही है ना। तो ये सारी चीजें आपने डिस्कस करनी है। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन अडेप्टेड and legitimized the administrative features of the Mughal Empire and the Mughal rule in administering pre-independent India. I told you ना, डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, सब इधर उधर से मिक्स मैच होके एडमिनिस्ट्रेशन पे क्वेश्चन आएंगे। तो जो ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेशन था, है ना, अब अगर हम देखें रियायतवारी हो गई आपका, जो इरिगेशन सिस्टम पे या टेन्योर कलेक्शन से रिलेटेड चीजें थी आपकी, महलवारी सिस्टम हो गई या परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम्स थी जो, ठीक है, तो उनका बेस क्या था, मुगल एम्पायर ही था, ठीक है, कि पहले किस तरीके से चीजें यहाँ पे होती थी उसी के बेसिस पे ब्रिटिशर्स अपना एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, तो वो चीज को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। Has social audit paved the way for a responsive, accountable and ethical governance? I think ये जो चीज है इन लोगों ने GS4 में ले लिया है, सोशल ऑडिट एंड ऑल, बट बेसिक सा क्वेश्चन है, has paved the way for a responsive, accountable and ethical governance? Explain. Simple है. Discuss the scope of public administration in the era of globalization. दो कॉन्सेप्ट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है और ग्लोबलाइजेशन क्या है, इन दोनों को कनेक्ट करके आंसर फ्रेम करना है, सिंपल है। Explain how development of administration is different from administration for development. डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आपको एडमिनिस्ट्रेशन में डेवलपमेंट लाना है, आपको आईसीटी का यूज करना है, आपको गुड गवर्नेंस का यूज करना है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप यूज कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, तो दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हाउ नाउ हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, तो इस चीज को आपको एक्सप्लेन करना है। In the development process, besides the government, civil society organization and NGOs have also become stakeholders, elucidate this phenomenon. तो बेसिकली सिविल सोसाइटी का और एनजीओ का डेवलपमेंट में क्या रोल है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। 2022 evaluate the function of the Supreme Court of India as a guardian of Constitution, है ना।
क्या है ये क्वेश्चन? बेसिक सा क्वेश्चन है कि जो सुप्रीम कोर्ट है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का कैसे गार्जियन है, चाहे वो रिट पिटिशंस हो, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन करना हो, सारी चीजें कहाँ से आ रही है? सिस्टम है। ओके, तो इस तरीके से आपको ये चीजें अब इवेल्युएट करना है, ठीक है, तो थोड़ा तो आपको क्रिटिसिज्म देना पड़ेगा ना कि भाई किस तरीके से गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, या क्या प्रॉब्लम्स कर रही है, वो आप आएगा आपका जुडिशियल ओवररिच, ठीक है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन व्हाट, कलेजियम सिस्टम आ गया आपका, फिर आगे आपका डिले, पेंडेंसी ऑफ केसेस, है ना, ये सारी चीजें आपकी इस आंसर्स में प्रिवेल करेंगी. Though the legislative control over administration is well defined, the effectiveness of same is neither felt nor observed. ठीक है, ये क्वेश्चन जब भी आया था तो बहुत सारे लोग जो है इसको लेके कंफ्यूज हुए थे कि लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन इज वेल डिफाइंड, तो इसमें क्या लिखना है? एडजर्नमेंट मोशन, एडजर्नमेंट सिनेडी, मोशन जितने भी हैं वो सारे डिस्कस करने हैं हमको, या कि किस तरीके से जो लेजिस्लेटिव है एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर रहा है थ्रू वेरियस कमिटीज, लाइक पब्लिक अकाउंट कमेटी हो गया, या कैग हो गया आपका, एस्टिमेट्स कमेटी हो गई, कमेटी ऑफ ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स हो गई, कट मोशंस है, वोट ऑन अकाउंट है, ये सारी चीजें करनी है. तो ये उस टाइम पे थोड़ा सा था, तो मैंने भी दूसरी चीज कही कि जितनी भी कमिटीज हैं, ठीक है, जो लेजिस्लेटिव कमिटीज हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर रही है, वो आपको क्रिटिकली यहाँ पे इवेल्युएट करना है कि उनकी इफेक्टिवनेस आई है या नहीं आई है. हैज 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ हार्मलेस प्रोविजन? क्या है 10th शेड्यूल आपका? एंटी डिफेक्शन लॉ है, ठीक है, तो ये लोग सीधा सीधा क्या पूछ रहे हैं कि क्या जो एंटी डिफेक्शन लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन का वो हार्मलेस प्रोविजन है? तो बेसिकली आपको यहाँ क्या डिस्कस करना है कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, ठीक है, कौन कौन सी प्रोविजन में एंटी डिफेक्शन लॉ लागू पड़ता है, ठीक है. अब जब भी लॉ बनता है देयर ऑलवेज अ लूप होल्स, है ना. जैसे कि रिसेंटली महाराष्ट्र में हुआ था कि शिंदे ग्रुप के कुछ 1/3 मेंबर अराउंड जितने रिक्वायर्ड होने चाहिए, है ना, वो निकल के आ गए थे बीजेपी के पास, ठीक है, उन्होंने अपनी अलग वो कर ली. तो ये एंटी डिफेक्शन में आया ही नहीं. व्हाई? बिकॉज दे टुक द हेल्प ऑफ लूप होल. तो यहाँ पे आपको जब आप ये डिस्कस कर लेंगे कि एंटी डिफेक्शन क्या है, कौन कौन से प्रोविजन एंटी डिफेक्शन लॉ में आते हैं, मतलब क्या क्या चीजें हैं जो आपकी एंटी डिफेक्शन में आएगी, और कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं पड़ता है, वही आपको एक्सप्लेन करके आपको आंसर करना है. ये भी बहुत फेवरेट है जीपीएससी का. फिस्कल फेडरलिज्म इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द जीएसटी काउंसिल इज द फोकल पॉइंट टू फोस्टर फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी. क्या डिस्कस करना है यहाँ पे आपको? इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, पहले तो ये बताइए कि है क्या फिस्कल फेडरलिज्म, हाउ इट इज important फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड नाउ इट इज सेइंग एंड द जीएसटी काउंसिल इज द फोकल पॉइंट टू फोस्टर फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी. तो फिस्कल फेडरलिज्म और जीएसटी काउंसिल फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी को कैसे फोस्टर कर रहे हैं, ये आपको बताना है. कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो रहा है, ठीक है, डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स हो रहे हैं, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी आई है, ठीक है, कंसेंसस बेस्ड अप्रोच है. क्यों जीएसटी काउंसिल में कंसेंसस बेस्ड अप्रोच ही हम यूज करते हैं, राइट, टू डिसाइड एनी टैक्सेशन, द रेट्स एंड एवरीथिंग. तो उस तरीके से फेडरलिज्म भी एक कंसेंसस बेस्ड ओरिएंटेड हो रहा है, और डेमोक्रेसी को जो है वो और भी हम स्ट्रेंथन करते हैं. But you need to mention certain challenges as well and then a good conclusion. Is the election commission hampered in performing its role because the model code of conduct does not have a statutory backing? देखो, पहली चीज हमेशा ऑप्टिमिस्टिक आंसर देना है ऐसी चीजों में. व्हाई? बिकॉज इलेक्शन कमीशन हैज
till date conducted fair and free election. यस, नो डाउट कि हमारा जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके पास स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, उसकी वजह से हम सर्टेन चैलेंजेस फेस करते हैं. ओके, अलाउ मी अ मोमेंट. ठीक है कि जो है डिले नहीं, रिड्रेसल सिस्टम में इशू हो रहा है. अब सिंस स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, किसी के पास सच पावर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ही कहती है कि एमसीसी ने ये वायलेशन किया है या XYZ हुआ है. ठीक है, बट इलेक्शन कमीशन के पास कोई पावर नहीं है, एमसीसी की कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है. ठीक है, एक सिंपल लॉ बना दिया है कि हाँ ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, इसके अगेंस्ट जाके आप कुछ नहीं कह सकते, बट उसका कोई बैकिंग नहीं है सिंस इट डजंट हैव अ स्टैट्यूटरी कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो आपको एक्सप्लेन करना है कि क्या ये सारी चीजें जो हैं इलेक्शन कमीशन के रोल को हैम्पर कर रही है. सुन लो व्हाई, बिकॉज इलेक्शन कमीशन अपना काम अच्छे से कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट जब भी ऐसा होता है एमसीसी, तो स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट ऑलवेज कम्स एंड प्ले इट्स रोल, गुजरात हाई कोर्ट ऑलवेज कम्स एंड प्ले इट्स रोल. बट yes, we do need to have a statutory backing. किसी कमीशन ने अगर इसके बारे में कुछ कहा है तो आप वो कमीशन का नाम भी लिख सकते हैं. Define statutory bodies and quasi-judicial bodies. Examine the purpose of establishing such bodies and bring out the key differences between them. ये सिंपल सा क्वेश्चन है. Statutory bodies और quasi-judicial bodies क्या क्या है, उनके functions और वो सारी चीजों को आपको डिफाइन करके उनको, उनमें से की डिफरेंसेस बाहर लाने हैं. ठीक है, और क्या लिखा है, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग सच बॉडीज. क्या जरूरत है कोई स्टैट्यूटरी बॉडी या क्वासी जुडिशियल बॉडी बनाने की, व्हाट इज द नीड, यू हैव टू मेंशन दैट और एग्जांपल्स देना है. आपका एनएच सॉरी एनएचआरसी हो गया, सीआईसी हो सॉरी सीसीआई हो गया, सीबीसी हो गया, सीबीआई हो गया. देयर आर एंडलेस बॉडीज. ठीक है, जिसके बारे में आप मेंशन कर सकते हो. RTI Act has empowered the citizens and at the same time indirectly redefined the concept of accountability. Discuss with examples. RTI के बारे में लिखो, पहले तो RTI एक्सप्लेन करो क्या है, किस तरीके से आया है, सिटीजन्स को कैसे एम्पावर किया है इस RTI ने. तो आपने वो एक्सप्लेन करना है कि भाई इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ RTI एक्ट उसमें डालिए कि किस तरीके से सिटीजन्स जो है इस पर्टिकुलर अथॉरिटी से अपने सवालों के जवाब मांगती है. एट द सेम टाइम इनडायरेक्टली रिडिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी. अब RTI है, मेंशन करो कौन कौन सी चीजें जो है वो RTI के अंदर आ गई है. इवन द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अंडर RTI नाउ. तो उसकी वजह से अकाउंटेबिलिटी कैसे बढ़ी है वो चीजें भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है. Has civil service organization and NGO as a source of grassroots mobilization as an arena and an arena for democratic participation become elitist driven? Critically examine the Indian context with this example. Examine the advantages and disadvantages. Okay, this was a different question. Examine the advantages and disadvantages of lateral entry into Indian services. पहले ये क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, सिंपल था, लेटरल एंट्री के बारे में आया था. कौन कौन सी पोस्ट में लेटरल एंट्री हुई है आपको पता होना चाहिए. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने कोटक महिंद्रा को इंक्लूड किया था. ठीक है, कोटक महिंद्रा के चेयरमैन को हमने रादर इंक्लूड किया था, नॉट द सेम नेम. ठीक है, तो उनको हमने लिटरल एंट्री के थ्रू लिया है. ठीक है, तो आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिटरल एंट्री के एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल. सिंपल सा क्वेश्चन था. ओके, ई गवर्नेंस एपिटमाइजेस debureaucratization through, though in reality e-governance negates debureaucratization. सॉरी, तो ये आपको ई गवर्नेंस, ठीक है, क्या है ई गवर्नेंस वो एक्सप्लेन करना है. उसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी में क्या चेंजेस आए हैं वो एक्सप्लेन करना है. सिंपल है. ठीक है, ब्यूरोक्रेसी और ई गवर्नेंस को कोरिलेट करके आंसर मेंशन करना है. व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड, आई टोल्ड यू, है ना, कि जीपीएससी जो है कोई एक उसका फेवरेट टॉपिक पढ़ जाता है तो उस पे वो कंटिन्यूस फिर क्वेश्चन पूछेगी. लोकपाल एंड लोक अदालत, सॉरी लोकपाल वाज डिफरेंट, लोक अदालत.
ठीक है। अगेन ये जितने भी ऐसे टॉपिक्स हैं, लोकपाल हो गया आपका, लोक अदालत हो गई आपके, पीआरआई हो गई, यूएलबीज हो गई, दिस आर फेवरेट एरिया ऑफ जीपीएससी. So what is the idea behind establishing quasi-judicial bodies and how are they different from लोक अदालत? ये क्वेश्चन पढ़ा होता तो इसके पहले की ईयर वाला क्वेश्चन पता चल गया होता कि क्वासी जुडिशियल बॉडीज कौन सी है, ये क्वासी जुडिशियल बॉडीज. हाँ, एक तो आपका लोक अदालत हो गया, ठीक है, ये क्वासी जुडिशियल बॉडी नहीं है. व्हाट आर द क्वासी जुडिशियल बॉडीज, किन किन चीजों को आप क्वासी जुडिशियल बॉडीज में लेंगे? ट्रिब्यूनल्स, यस दे आर क्वासी जुडिशियल बॉडीज. एनएचआरसी है, सीसी है क्या, सोचो. ठीक है, तो क्या है ये क्वासी जुडिशियल बॉडीज को एस्टैब्लिश करने का पर्पस क्या है? डिले इन ट्रायल्स या डिले इन जस्टिस सिस्टम, है ना. उसके बाद क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव, यस इट इज कॉस्ट इफेक्टिव. टाइम बाउंड, easy for people to understand, right? So that's why this was the idea behind establishing quasi judicial bodies. तीन चार examples दो कौन कौन सी quasi judicial bodies and how they are different from लोक अदालत. सी, लोक अदालत में फ्री लीगल एड भी काम आता है. ठीक है, लोक अदालत में आप कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंसेस भी लोक अदालत में ला सकते हो. लोक अदालत डायरेक्टली जुडिशियल बर्डन रिड्यूस करता है. ठीक है, तो ये दिस इज हाउ लोक अदालत इज डिफरेंट फ्रॉम क्वासी जुडिशियल बॉडीज. व्हाट ग्राउंड्स पीपल रिप्रेजेंटेटिव कैन बी डिस्क्वालिफाइड अंडर आर, पर आपने सॉरी लक्ष्मीकांत पढ़ी है, सीधा सीधा क्वेश्चन है ये वहां से. मेंशन द रेमेडीज अवेलेबल टू सच पर्सन अगेंस्ट दिस डिस्क्वालिफिकेशन. ठीक है, तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो गया आपका, फेलियर टू लॉज इलेक्शन अकाउंट्स, फिर डिस्क्वालिफिकेशन बाय प्रेसिडेंट या गवर्नर है. कौन कौन से ग्राउंड पर डिस्क्वालीफाई कर सकता है प्रेसिडेंट और गवर्नर, वो सारी चीजें इसमें आपने आपको लिखनी है. क्या रेमेडीज अवेलेबल है? ऑब्वियसली जुडिशियरी के पास हम जाएंगे, है ना. उसके बाद अपील करेंगे, अपील की भी एक रेमेडी होती है. प्रेसिडेंट के पास जाएंगे, मर्सी पिटिशन, मर्सी तो नहीं बट पिटिशन लेके. ओके, तो these are the basic remedies. Term justice is in the preamble describes social, economic and political justice through various provisions of Indian Constitution. है ना. तो पहले तो क्या है? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये हमारे प्रीएम्बल का पार्ट है. ठीक है, तो वो चीजें हमने प्रीएम्बल में की है. अब ये सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस कौन कौन से आर्टिकल में है? सोशल जस्टिस के लिए आप क्या लेंगे? आर्टिकल 14, 14 से 18 पूरा ही लेंगे, सारी चीजें उसमें आ गई. 15 आ गया आपका, 16 आ गया, इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी एंड एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 21 आ गया आपका फिर. ठीक है, आर्टिकल 46 ऑफ डीपीएसपी, फ्री लीगल एड की बात करेंगे हम. डीपीएसपी के, डीपीएसपी से सोशल रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स है वो सारी चीजें हम इसमें डाल देंगे. बात आती है इकोनॉमी की. ओके, अगेन रिजर्वेशन, दैट विल सॉरी दैट विल बी पार्ट ऑफ पॉलिटिकल जस्टिस. ठीक है, इकोनॉमी, इकोनॉमी जस्टिस आप कैसे करोगे? आर्टिकल 21A. ठीक है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन. फिर आपका आर्टिकल 38 एंड 39 हो गया डीपीएसपी का. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, अगेन आर्टिकल 16 का आप रेफरेंस ले सकते हो. पॉलिटिकल जस्टिस में रिजर्वेशन वाले सेक्शन, स्पेशली पीआरआई, पंचायतों और अपर बॉडीज में. इकोनॉमिक जस्टिस में आप फाइनेंस कमीशन की बात कर सकते हो, है ना. ओके, इकोनॉमी में कोऑपरेटिव सेक्टर, आर्टिकल 19 के कुछ क्लॉजेस इसमें भी फॉल आउट होंगे. ठीक है, how a person gets citizenship of India and how does a person loses it, which are the situations. सिंपल सा सिटीजनशिप वाला क्वेश्चन चैप्टर है आपका लक्ष्मीकांत का, पढ़िए. ठीक है, उससे आपको पूरा इधर से आंसर मिल जाएगा.
Discuss the process of delimitation. Should the next limitation commission consider the change in number of constitution considering demographic factors? तो डिलिमिटेशन की पूरी प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करनी है कि डिलिमिटेशन किस तरीके से होता है, ठीक है। उसकी प्रोसीजर क्या है, तो सेंसस बेस्ड होता है, ठीक है। ऑर्डर्स फ्रॉम ड्राफ्ट प्रपोजल होता है, सारी जो भी प्रोसेस है डिलिमिटेशन की वो लिखनी है। और क्या नेक्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन है, शुड कंसिडर द चेंज इन नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस कंसिडरिंग द डेमोग्राफिक फैक्टर्स। ओके, व्हाट आर डेमोग्राफिक फैक्टर्स, हमने अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड हो गया आपका, पॉपुलेशन इम्बैलेंस, इम्बैलेंस, फिर आपका माइग्रेशन पैटर्न हो गया, है ना। वो सारी चीजें देख के क्या ये चीज होनी चाहिए, एक्सप्लेन। Smart urban planning is a mandatory ingredient for addressing the issues arising from urbanization in modern India. What is smart urban planning? उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। यहाँ पे आप आपका आईसीटी ले सकते हो, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कैसे होगा, वो आपके स्मार्ट अर्बन प्लानिंग का पार्ट है। Various socio-economic issues, problems emerge in the post-COVID pandemic context have been adequately addressed by the government through a series of policy initiatives and programs discussed. COVID time, see, such questions are not going to come anymore, but still, कोविड टाइम में लिए गए कितनी भी पॉलिसीज थी, स्कीम्स थी, एक्ट्स नए बने थे, एक्ट्स में कुछ एक्ट्स में अमेंडमेंट हुए थे विद रिस्पेक्ट टू डॉक्टर्स, ठीक है। क्या क्या थे उसके, क्या क्या पर्सपेक्टिव थे, वो सब लिखना है। This all are part of GS4. Somehow it came over here. तो सिटीजन्स चार्टर, राइट टू इंफॉर्मेशन पब्लिक सर्विस एक्ट पे एक क्वेश्चन था कि ट्रांसपेरेंसी और रिस्पॉन्सिवनेस को ये लोग डिलीवर करते हैं, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। येट टू बी फुल्ली अचीव्ड इन डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, तो बेसिकली चैलेंजेस इनके एक्सप्लेन करना है और क्या क्या मेजर्स हैं। Government has no business to be in business, and like the statement of Prime Minister Shri Narendra Modi in the concept of minimum government, maximum governance. All India services, there is a need of few more such all India services in the present administrative concept. ऑल इंडिया सर्विसेज की इम्पोर्टेंस बताना है। मैंने अभी ऊपर कहा था कि भाई कमीशन यूपीएससी और जीपीएससी जैसी एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशंस को थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ऐसे कमीशंस की और जरूरत है किन चीजों में है, जुडिशियल सर्विसेज में, है ना। और कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जिसमें ऑल इंडिया सर्विसेज की जरूरत है, उसके बारे में आपको मेंशन करना है। टू अवॉइड एलिगेशन ऑफ करप्शन, सिविल सर्वेंट्स ऑफन मेंटेन स्टेटस को ऑन वेरियस डिसीजन which leads to administrative paralysis and hampers growth and development discuss। भाई करप्शन ना हो उस चक्कर में क्या करते हैं सिविल सर्वेंट, जिस तरीके से पूरा सिस्टम चल रहा है वैसे ही चलता है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस होता है, हैम्पर्स ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट को हैम्पर होता है, ठीक है। डिस्कस, क्या ये सही है, तो हाँ ये सही है। व्हाई, क्योंकि वी हैव अ पॉलिसी ऑफ जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन, ठीक है। वी नेवर एनकरेज करप्शन, करप्शन के अगेंस्ट हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। तो ये सिस्टम हो सकती है कि पैरालाइज्ड हैम्पर एंड ग्रोथ, तो उसमें हम क्या करेंगे, सिविल सर्विसेज, सिविल सर्वेंट अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्किंग है, ठीक है, उसको हम स्पीडियर करेंगे, विच शुड ऑल्सो बी एफिशिएंट, है ना। एफिशिएंसी को मेंटेन करते हुए हम उसको स्पीडियर कैसे करेंगे, हम उसमें आईसीटी है या एआई है उसका रोल कैसे हो रहेगा, उस तरीके को यूज करके हम जो ये ग्रोथ और डेवलपमेंट वाला सेक्टर है जिसको वो ये करप्शन या हम पैरालाइज कर रहा है या हैम्पर कर रहा है उसको हम डिक्रीज कर सकते, ठीक है। ईयर 2019, circumstances in which bills presented in parliament can get lapsed, explain with example। सिंपल है, कौन कौन सी कंडीशंस में पार्लियामेंट में बिल्स लैप्स होते हैं वो आपको मेंशन करना है। दो तीन कंडीशंस हैं, उसको ही अच्छे से एग्जाम्पल ना, देखो ये 10 मार्कर क्वेश्चन है तो इसको एग्जाम्पल के साथ तो एक्सप्लेन करना है कि लोकसभा ने पास कर लिया और राज्यसभा में रह गया और सेशन खत्म हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा में रह गया, तो बिल लैप्स हुआ नहीं हुआ। ये सारी चीजें आपको दो चार जो कंडीशंस है उसको विद एग्जांपल एक्सप्लेन करना है। इंडियन
डेमोक्रेसी कैन नॉट बी टायरनी ऑफ द अनइलेक्टेड। ये बहुत ही नाजुक क्वेश्चन था उस समय में। अरुण जेटली स्टेटमेंट ऑन द एनजीएसी वर्डिक्ट, डिस्कस द स्टेटमेंट इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट। तो क्या था, ये कहना क्या चाहते, कैन नॉट बी अ टायरनी ऑफ द अनइलेक्टेड। तो ये क्या कहना चाह रहे थे कि भाई इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो जुडिशरी से वो नहीं रखेगा, क्या कहना क्या चाह रहे थे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा नाजुक सा था, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, डिस्कस इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। तो रिसेंटली क्या हुआ था, कलेजियम सिस्टम पे उस टाइम पे क्या कहा गया था, एनजेएसी को अनकॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशियल की अपॉइंटमेंट उस टाइम पे किस तरीके से थी, ठीक है। तो अनइलेक्टेड लोगों की वजह से इंडियन डेमोक्रेसी इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए, उस पे ये क्वेश्चन था जिसको आपको एक्सप्लेन करना है। इसका मॉडल आंसर बहुत अच्छे से रेडी किया है हमने, हम हमारी नेक्स्ट क्लासेस में उसको डिस्कस करेंगे। डू यू अग्री विद सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दैट राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, जस्टिफाई योर आंसर। ऑफ कोर्स, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी को अब यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। डू अग्री, ऑब्वियसली यस है, नो तो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, ठीक है। तो राइट टू प्राइवेसी है क्या, ठीक है, इन डिटेल उसको बताना, और वो फंडामेंटल राइट कैसा है वो बताना। तो व्हाट इज अ फंडामेंटल राइट, पहले ये एक्सप्लेन करो। राइट टू प्राइवेसी क्या है सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंगली, ये एक्सप्लेन करो, और उस ये चीज को जस्टिफाई करो कि ये कैसे है। इसमें आप पुराने जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, जैसे एडीएम जबलपुर को ओवररूल सुप्रीम कोर्ट ने किया था, ठीक है, वो सारी चीजों का भी आप रेफरेंस दे सकते हैं। Distribution of powers between union and states under the seventh schedule of the constitution is not absolute. Examine the statement in the context of union and state relations. तो क्या कहना चाह रहे हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है यूनियन और स्टेट में, वो अंडर द सेवेंथ शेड्यूल इज नॉट एब्सोल्यूट। कुछ कंडीशंस में जो है हम उस पे सेंटर लॉ बना सकता है या स्टेट के पास से उस पावर जा सकते हैं। व्हाट आर दोस कंडीशंस, आर्टिकल 352 एंड 356। ये दो आर्टिकल जब किसी भी जगह पे प्रवेल होते हैं, जब इम्प्लीमेंट होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं, तो उस समय में जो स्टेट के पावर्स है वो यूनियन के पास, सेंटर के पास चले जाते हैं। इन कंडीशंस में क्या होता है, स्टेट का पावर्स, सॉरी, ये जो कहना चाह रहा है ना कि एब्सोल्यूट नहीं है, वो आता है। दूसरी क्या कंडीशन हो गई, when on one particular topic state is also making a law and center is also making law, and if the center bills is with precedent for its assent, तो कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा, लॉ मेड बाय सेंटर। ओके, तो इवन इन द कॉन्करेंट लिस्ट जहां पे सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना रहे हैं, लेकिन अगर सेंटर का लॉ जो है प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है, तो वहां पे सेंटर का लॉ प्रिवेल कर जाएगा। सो दिस आर सर्टेन कंडीशंस व्हिच यू हैव टू गिव अंडर दिस क्वेश्चन। Are legislative councils necessary in states? Discuss with context of some states demanding legislative council to be established and some other proposing it to be abolished. Simple है, what are legislative councils? ठीक है, ये explain करो. What are its benefits? What are its disadvantages or demerits? और उनके बेसिस पे आपको आंसर करना है that are they literally necessary? और हाँ, यहाँ पे डेफिनेटली आपको ये जरूर बताना है कि कौन से जो स्टेट्स हैं वो उसकी डिमांड कर रहे हैं और कौन से स्टेट्स ये कह रहे हैं कि भाई हमको तो नहीं चाहिए। तो जैसे बिहार में लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत क्रिटिसिज्म फेस किया, तेलंगाना में चाह रही है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको डिस्कस करनी है, एक्सप्लेन करना है, आर्ग्यूमेंट इन फेवर एंड इन अगेंस्ट ऑफ हैविंग लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगेन क्वेश्चन ऑन 73rd and 74th constitution. How local self-government bodies become ineffective to an extent due to administrative decentralization not matching with the democratic decentralization post 73rd and 74th constitutional amendment. तो बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है कि 70th और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज तो बन गई, लेकिन वो इनइफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि उनके पास जो पावर्स होने चाहिए वो पावर्स नहीं है। वो पावर्स क्या हो गए हैं, सेंट्रलाइज, ठीक है।
कि मान लो कि सिटी या पंचायत लेवल, नगर, नॉट नगर पंचायत, अर्बन लोकल बॉडीज ने के पास बॉडी तो बना दी, लेकिन रेवेन्यू कलेक्शन का पावर आज भी गवर्नमेंट के पास ही है। ठीक है, या इम्पोर्टेंट जगहों पे गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्शन रख रही है और छोटी मोटी में यूएलबीज को गवर्नमेंट, सॉरी, रेवेन्यू कलेक्शन का पावर दे रही है। तो जो पावर डिवोल्यूशन है वो पावर डिवोल्यूशन प्रॉपरली नहीं हुआ है। उसके बाद क्या है, पॉलिटिकल इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, पॉलिटिकल इंटरवेंशन इन लोकल बॉडीज में बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, फंड्स एज आई स्टेट प्रॉपरली इनको नहीं मिल रहे हैं। एक तो रेवेन्यू जनरेशन के लिए पावर्स कम है, ऊपर से फंड्स का डिवॉल्यूशन भी कम हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, ये बॉडीज के पास ट्रेनिंग नहीं है प्रॉपर, है ना, एंड करप्शन और अकाउंटेबिलिटी इश्यूज तो हर बार रहेंगे। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर थिंग्स आर नॉट इफेक्टिव, and for that you need to give certain solutions. The creation of devolution of funds from union to the state has undergone changes in the 15th Finance Commission compared with 14th और 15th को कंपेयर करना है। यस, उस टाइम पे जो 14 फाइनेंस कमीशन के टाइम पे जो पावर डिवॉल्यूशन था, फंड्स का जो डिवॉल्यूशन था, वर्टिकल हो या आपका वर्टिकल डिवॉल्यूशन टू बी प्रिसाइज, उस पे और इन पे चेंजेस हुआ था। पॉपुलेशन क्राइटेरिया ध्यान में रखा गया था, इनकम डिस्टेंस को ध्यान में रखा गया था, फिर फॉरेस्ट एरिया जो था उसको ध्यान में रख के जो है डिवॉल्यूशन को पार्ट बनाया गया था। देन आई गेस डेमोग्राफी, डेमोग्राफिक प्रेफरेंसेस दिए गई थी, एंड आई थिंक टैक्स एफर्ट्स को भी एक क्राइटेरिया रखा गया था। तो जो क्राइटेरियाज थे फंड्स डिवॉल्यूशन के, उनको यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन विथ इलस्ट्रेशन रोल प्लेड बाय रेगुलेटरी बॉडी इन रेगुलेटिंग द की सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। कौन कौन सी रेगुलेटरी बॉडी है जो आपके जो इकोनॉमी के की सेक्टर को ध्यान में रखती है? जीएसटी, है ना। फिर उसके बाद कौन सी कमीशन हो, सॉरी, क्या क्या हो गया, सेबी, ट्राई, आरबीआई, है ना, रेगुलेटरी बॉडीज में आती है। ठीक है, तो इन लोगों का इंडियन इकोनॉमी में क्या रोल है वो एक्सप्लेन करना है। कैन अमेंडमेंट्स टू इम्पोज हायर पेनल्टीज एज सजेस्टेड इन मोटर व्हीकल एक्ट ऑफ 2019, ये जो था उस टाइम पे ना, मोटर व्हीकल एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सिलेबस में था, इट्स रूमर आई थिंक, तो देख लो। Widespread use of social media has reduced the digital divide. Explain. Comment. Yeah. 2018. Can GST Council be considered as an example of cooperative federalism? ठीक है, सी, अगर पेपर को आपने जीपीएससी को एनालाइज किया है तो जीएसटी, उसके बाद 73rd एंड 74th, ओ सॉरी, फेडरलिज्म, ये सारे ना इनके फेवरेट टॉपिक्स हैं। जैसे मैंने हिस्ट्री में बताया था ना कि हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर कुछ भी कर लो तो ट्राइबल्स को पढ़ो, ट्राइबल की गतिविधि, ट्राइबल की कल्चर, आर्ट, हिस्ट्री, उनको पढ़ो। उसी तरीके से यहाँ पे पॉलिटी में हो गया। ठीक है, गिव योर व्यूज। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में जीएसटी कैसे है, इक्वल पार्टिसिपेशन है। ठीक है, उसके बाद आपका कंसेंसस बेस्ड अप्रोच है, क्राइसिस रिस्पॉन्स में उसका अप्रोच है, जॉइंट डिसीजन मेकिंग है। ये सब क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का ही तो पार्ट है, राइट। आर पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ इनकम्पैटिबल टू ईच अदर? तो यू हैव टू मेंशन सर्टेन प्राइवेट, सॉरी, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। जो इक्वालिटी, हम जो कहते हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ होना चाहिए, जो आर्टिकल 14 का एक पार्ट है, उसको उसके थोड़े अगेंस्ट में है, बट अगेन द नीड ऑफ आर है ना। स्पेशल राइट्स एंड स्पेशल इम्यूनिटीज मिली है सर्टन लेजिस्लेचर को कि आप उनको कब अरेस्ट कर सकते हो, कब अरेस्ट नहीं कर सकते हो, वो सारी चीजें हैं जिसको आपको एक्सप्लेन करना है। जजेस सिलेक्ट जजेस सिस्टम कलेजियम फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस हैज बोथ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ये देखो, ये क्वेश्चन आज भी लागू पड़ता है ना। तो इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स डिस्कस करने हैं बेसिकली। गवर्नर हैव
अगेन योर गवर्नर, 3-4 बार तो गवर्नर साहब आ चुके हैं पिक्चर में, ठीक है। गवर्नर हैज टेकन डिसीजन सिमिलरली इन डिसिमिलर सिचुएशंस, sorry, circumstances and dissimilarly in similar circumstances. Analyze the role of the governor in state references to the above स्टेटमेंट। तो अगेन रोल ऑफ गवर्नर आपको स्टेट के रेफरेंस में डिस्कस करना है, कौन से सिचुएशंस है जहाँ पे गवर्नर के कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आके डिसीजन लेते हैं। यू ऑल नो राइट कि गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर्स भी हैं, तो उन सारी चीजों को और कहाँ इन सब चीजों में जुडिशरी ने भी इंटरवेंशन किया है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज फेमसली कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में जितने भी इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट हुए थे, चाहे वो प्रियम्बल में अमेंडमेंट हुआ हो, प्रियम्बल में क्या अमेंडमेंट हुआ है, सोशल सेक्युलर इंटेग्रिटी, इनको ऐड किया गया है, ठीक है। स्ट्रेंथ, सॉरी, सेंटर को स्ट्रेंथन किया गया है। आई टोल्ड यू कॉन्करेंट लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट्स ऐड किए गए थे, लाइक फॉरेस्ट हो गया, एजुकेशन हो गया, आपका वेट्स एंड मेजर्स हो गया, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे जो स्टेट से कॉन्करेंट में ट्रांसफर हुए थे। तो उन सब ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुए हैं अंडर द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, दैट्स व्हाई उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो वो सारी चीजें लिखनी है। Differentiate judicial review, judicial activism and judicial overreach with suitable example. Easy question. Judicial review क्या है, judicial activism क्या है, overreach क्या है, इनको अच्छे से explain करना और examples देना है। जब भी आप ऐसे questions में example दे रहे हो तो make sure कि आपको इसका और इसका concept अच्छे से clear हो और आपका जो example है वो exactly किस में fall कर रहा है, activism में या overreach में, ठीक है, वो ध्यान से देखना है। This all are questions with respect to administration. Please go through them. ठीक है? How public administration and governor have become a part of modern democracy. ठीक है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस दोनों ने डेमोक्रेसी को अलग लेवल पे स्ट्रेंथन किया है। कैसे? और अब आप जब मॉडर्न डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो तो आपको इसमें हर चीज का ध्यान लेना है। ई गवर्नेंस है, यूज ऑफ एआई है, ठीक है, यूज ऑफ आईसीटी है, ठीक है, नेक्स्ट लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी जनरेट हुई है, अकाउंटेबिलिटी जनरेट हुई है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखना है फॉर व्हाइल आंसरिंग सच क्वेश्चंस। रिलेशनशिप बिटवीन पब्लिक पॉलिसी एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, ठीक है। सेकंड एआरसी से सीधा क्वेश्चन था, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरी क्या है। तो कौन से एआरसी के रिपोर्ट में ये चीज मेंशन की गई है, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी है क्या, और करंट डेमोक्रेसी या करंट गवर्नेंस में उसका क्या प्रेफर सॉरी कंटेक्स्ट है। Concept of administrative adjudication क्या है? What is adjudication? You need to know it very clearly. And what is administrative adjudication? इस टाइम पे ना ये 3, 5 और 10 मार्कर क्वेश्चन थे, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इन क्राइटेरिया में फॉल हो रहे होंगे। कौटिल्यस अर्थशास्त्र इज इंडियन डिस्कोर्स ऑन स्टेट क्राफ्ट, इकोनॉमिक पॉलिसी एंड मिलिट्री स्ट्रेटेजी। प्लीज कौटिल्य के अर्थशास्त्र को अच्छे से पढ़िए। अभी तक इसने जीपीएससी ने 1 या 2 बार ही क्वेश्चन पूछा है। ये सारे क्वेश्चन जो है एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ही है, प्लीज इनको अच्छे से देख लीजिएगा। क्रिटिकली एनालाइज हाउ सिविल सर्विसेज न्यूट्रलिटी इज फाउंड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द, आपको ये पता होना चाहिए कि सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी क्या है। ये जो टर्म था ये उस टाइम पे टॉकिंग अबाउट 2018, कहीं से तो ये आइदर ये योजना में कहीं आया था या इकोनॉमिक सर्वे में कहीं आया था ये टर्म, सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी, ठीक है। ये वहां से टर्म उठा था और ये क्वेश्चन आया था। सो ऐसे कोई टर्म्स अगर न्यूज़पेपर्स में या योजना में या इकोनॉमिक सर्वे में से आ रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज उन पे ध्यान दें। Has the Whistleblower Protection Act 2014 helped in strengthening the RTI for the benefits of citizens? What is Whistleblower Protection Act? Whistleblower को क्या प्रोटेक्शन मिली है इस एक्ट के थ्रू? क्या उसने आरटीआई को स्ट्रेंथन करने में हेल्प किया है?
So you have to, firstly you need to know what are the protection given to whistleblower, वो मेंशन करो, और वो एग्जैक्टली exactly किस लेवल का प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन फ्रॉम, और उसमें पनिशमेंट क्या है, ठीक है, प्रोटेक्शन तो मिल गया, लेकिन व्हाट आर द punishment given for some same if you are harassing or if you have taken any step against the whistleblower, ठीक है, तो उसके लिए क्या है वो चीजें लिखनी है। ये जो चीज थी ना, ये आरटीआई से ओरिजिनेट होके आई थी, और उस टाइम पे ये न्यूज में भी काफी थी, सो दैट्स वाई ये क्वेश्चन डायरेक्टली आया था। Three components. Digital India consists of three components: development of secure, stable digital infrastructure, delivering government services digitally, and universal digital literacy. 2018, you see, was the era of digital India. Why? Because if you remember, in 2016, what Modi government did was, क्या किया था मोदी गवर्नमेंट? Demonetization. जो डिमोनेटाइजेशन किया था उसकी वजह से डिजिटल इंडिया आया, और उस टाइम पे डिजिटल इंडिया पे, ये 2-3 साल में डिजिटल इंडिया पे बहुत सारे आर्टिकल्स आए थे, वहीं से ये क्वेश्चन उठ के आया था। डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ पब्लिक सर्विस कोड एज मेंशन बाय सेकंड एआरसी। नाउ देखो, इससे आपको समझना है कि सेकंड एआरसी से डायरेक्टली क्वेश्चन उठ के आ रहा है, सो यू नीड टू नो and the basic concepts and terminologies given in ARC, basic recommendation given in ARC with respect to particular post, with respect to the system, ठीक है, तो वो ARC का समरी अच्छे से पढ़ो। Name the states that have legislative councils and give at least two reasons why legislative councils are necessary. This was, I guess, 3 या 5 marker question था. Does the preamble to the Constitution to secure, what does the preamble to the Constitution of India seeks to secure to all citizens? Explain briefly. ये आई थिंक कुछ 5 marker क्वेश्चन था। ओके, what does the preamble to the Constitution of India seek to secure to all its citizens? तो preamble जो है Constitution of India से ऐसा क्या लेता है जो citizens को secure करता है, briefly explain करिए। Under what conditions a member of legislative body can be disqualified under the office of profit? 3 marker question, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन हमको इस बार 5 marker क्वेश्चन है, डू नॉट फॉरगेट दिस, ऐसा नहीं कि हमको सिर्फ 10 marker क्वेश्चन पे ही फोकस करना है, ये जो 3 marker क्वेश्चन है ना, ये 5 marker में आराम से कन्वर्ट हो सकता है, तो उसको ध्यान देना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एंड स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और इसको डिस्टिंग्विश करने हैं, एग्जाम्पल्स के साथ पावर डिस्कस कीजिए, ठीक है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज के पास क्या पावर है और स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज के पास क्या पावर है, ठीक है। व्हाट इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसेप्चुअलाइज इन इंडिया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये शायद 5 marker क्वेश्चन था, ठीक है। पार्ट 18 of the Constitution of India is considered as a provision leading to constitutional authoritarianism, argue। अच्छा, ये क्वेश्चन अलग है, ठीक है। तो क्या है पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इमरजेंसी, अगेन फेवरेट ऑफ जीपीएससी, ठीक है। सो पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड एज अ प्रोविजन लीडिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटेरियनिज्म। अब इमरजेंसी आप डेवलप कर घोषित करते हैं, 352 में हो गया या 360 में हो गया या 356 में हो गया, तो सर्टन अथॉरिटी पोजीशन के पास सर्टन अथॉरिटीज आ जाती हैं। वो क्या क्या अथॉरिटीज हैं ये आपको मेंशन करना है, 352, 360 और 356 के अंतर्गत सारे इमरजेंसीज को इसके थ्रू एक्सप्लेन करना है। Though right to education has been made a fundamental right, much has to be done for universal and qualitative access for the underprivileged sections. Describe the measures for providing accessibility to quality education. इसमें आप बेसिकली पहले तो डेटा शेयर करो, राइट, एनरोलमेंट रेशियो क्या है आपका, गर्ल्स एजुकेशन कितना है, बॉयज एजुकेशन कितना है, प्राइमरी में कितना है, हाई सेकेंडरी में कितना है, ठीक है, वो सारी चीजें एक्सप्लेन करो। और राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, फिर भी यूनिवर्सल एंड क्वालिटेटिव एक्सेस अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के पास नहीं है, दैट मीन्स देयर आर सर्टेन चैलेंजेस, बॉटलनेक चैलेंजेस भी हो सकते हैं, ठीक है, तो वो एक्सप्लेन करना है और उनको सॉल्यूशंस देना है।
सारे मॉडल आंसर्स रेडी हैं, विल बी डिस्कसिंग ऑल द मॉडल आंसर्स, क्योंकि पूरा पॉलिटी और इतने सारे क्वेश्चंस हैं दैट वी कैन नॉट आई कैन नॉट एक्सप्लेन आंसर टू एवरी क्वेश्चन एज ऑफ नाउ। मैं बेसिक्स आपको बताऊंगी कि इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं एंड जीपीएससी का ट्रेंड क्या है, ये चीजें हमें डिस्कस करना है आज। As far as the answers are concerned, entire PDF is ready, which we will be discussing shortly in the next classes. Should law and order continue as a subject of the state list? Discuss. This was a 10 marker question. ठीक है, तो क्या लॉ एंड ऑर्डर स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट होना चाहिए? दैट मीन्स जो पुलिस है आपकी, ठीक है, क्या वो स्टेट लिस्ट में रहनी चाहिए, या उस पे जो लॉ बनते हैं क्या सिर्फ वो स्टेट बना सकते हैं, या कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया जाए ताकि यूनियन भी बना सके, या सिर्फ यूनियन लिस्ट में डाल दिया जाए कि सेंटर ही बना सके ताकि भारत की सारी पुलिस जो है वो एक ही तरह के लॉ को फॉलो करे। डिस्कस। ओके, एक्सप्लेन द स्कोप एंड एक्सक्लूजन अंडर द आरटीआई एक्ट। तो आरटीआई का स्कोप क्या है और एक्सक्लूजन, तो कौन कौन सी चीजों में आरटीआई के तहत आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। सेक्शन 8 ध्यान से पढ़ लीजिए। पार्टिसिपेटरी, ये आई गेस 5 मार्कर क्वेश्चन था, ठीक है। पार्टिसिपेटरी मैकेनिज्म एनहांस द डेवलपमेंट प्रोसेस, तो पब्लिक पार्टिसिपेशन और गवर्नेंस पे बेसिकली क्वेश्चन है, ठीक है, दैट हाउ पब्लिक पार्टिसिपेशन enhances the developmental process. Examine the importance of PIL in India, 10 marker question. Scope, aim, and objective, its advantages, everything you need to explain. सीधा सीधा basic question है। शॉर्ट कमेंट्स इन द यूनिवर्स, ये उस टाइम का क्वेश्चन था, अभी इतना इसका रेलेवेंस नहीं है, सो इट्स ओके। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इन इंडिया, एंग्लो सैक्सन सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन, ठीक है। वॉलंटरी एजेंसीज एंड एनजीओज हैव अ सप्लीमेंट्री रोल इन इम्प्लीमेंटिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगेन पहले भी हमने देखा कि एनजीओ और डेवलपमेंटल प्रोग्राम, देखिए डेवलपमेंट में ऊपर एक क्वेश्चन आया था, हमने अभी डिस्कस किया था कि डेवलपमेंट में एनजीओ, सिविल सोसाइटी एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन, इसका इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, वो चीज हमने डिस्कस की थी। ये भी क्वेश्चन वहीं से आया है कि वॉलंटरी एजेंसीज, ठीक है, और एनजीओ जो है वो सप्लीमेंट्री रोल प्ले करते हैं डेवलपमेंट प्रोग्राम में, किस तरीके से, यू हैव टू एक्सप्लेन। Administrative Tribunal India are following the Anglo-Saxon system of administrative system. As of now, I am forgetting what exactly is Anglo-Saxon system, but इसका आंसर रेडी है, तो जब हम उसको डिस्कस करेंगे तो ये भी डिस्कस करेंगे। Okay, so we are done with all the important PYQs. ठीक है, आज since 2017 to 2024 सोर्स आपका क्या है? लक्ष्मीकांत है एक तो, ठीक है। आप योजना अच्छे से पढ़ो। फॉर गुजरात रीड पाक्षिक, है ना। न्यूज़पेपर्स, आपकी कोई नया कोई एक्ट या बिल आ रहा है तो उसको अच्छे से एनालाइज कीजिए, ठीक है। वहीं से सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। सी इन पॉलिटी यू नीड टू नो व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन, ठीक है, राइट। सेंटर या स्टेट में क्या चल रहा है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पॉलिटी, इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, गवर्नेंस में क्या है, कोई नया इनिशिएटिव है, किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कुछ नया हो रहा है इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस, ठीक है, तो उन सारी चीजों को ध्यान रखिए, क्वेश्चन वहीं से आएंगे, ठीक है। एंड व्हेन इट कम्स टू पॉलिटी, if any, like in now if I talk about Gujarat GPSC, the panchayats are going for elections, तो elections हो रहा है, पंचायत इलेक्शंस आ रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको अगर स्टेट इलेक्शन कमीशन पे कोई क्वेश्चन आता है, सो यू शुड नॉट गेट सरप्राइज कि ये कहाँ से आ गया, या पंचायत सिस्टम पे कोई क्वेश्चन आ रहा है, पंचायत इलेक्शंस या रिजर्वेशन पॉलिसी पे कोई क्वेश्चन आ रहा है, देन यू शुड नॉट बी सरप्राइज्ड। So that's all. Okay, we'll be discussing answer for all the questions on our next lectures with respect to model answers. Thank you.